Hello everyone, welcome to my channel. This is Kushal and I have brought the second video on the fifth chapter, the Ailing Planet. Okay students, in previous video I told you about sustainable development. What do you mean by sustainable development? You may be asked students. Okay, so what is sustainable development? It is very important. You may be asked a question here. Sustainable development was started in 1987. Okay, and it was launched by World Commission on Environment and Development. Okay, in its report it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. यहाँ meet का मतलब है fulfill करना. ठीक है, meet का मतलब है fulfill करना. So it is a development which fulfills the needs of the present generation, the requirements of the present generation, and without compromising the future generations to fulfill their needs, their requirements. So in simple words we can say that sustainable development means using the natural resources in such a way that present generation may fulfill their requirements. Simultaneously the coming generations may not have have to compromise with their needs. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. तो सिंपल वर्ड्स में फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई विदाउट स्ट्रिपिंग, कि भी स्ट्रिपिंग करने का मतलब होता है क्लियर करना. ठीक है, क्लियर करना भी होता है. और द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड. तो यही है कि स्मार्ट यूज, वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट फ्यूचर जनरेशंस मे नॉट बी deprived of the natural resources. Okay, so today we have to start from here. In the zoo at Lusaka, Jamia, there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal. Students, क्या बताया हुआ है कि जो लुसाका जाम्बिया इज अ कंट्री, और वहाँ लुसाका जो जगह है वहाँ जू है एक. तो देयर इज अ केज, उस जू में केज है, केज एनक्लोजर है ना, वेयर एनिमल्स आर केप्ट. सो देयर इज अ केज एट लुसाका जाम्बिया. ठीक है, वेयर द नोटिस रीड्स, एंड देयर इज अ नोटिस विच रीड्स. क्या नोटिस है कि क्या लिखा हुआ उसके ऊपर? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. Inside the case there is no animal, and it's quite funny that inside the case there is no animal. It is empty, but a mirror where you see yourself. Only a mirror is set there, and in that mirror you can see your own reflection. You can see your own image. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. So it's quite funny that the case has no animal. It has only a mirror where a man can see his own image, man can see only his reflection, and it makes him realize that it is only he who is the most dangerous animal on the earth. Okay, who has made the earth a patient, who has misused all its natural resources. Okay, so he has realized it. He has realized that he is the most dangerous animal, and it is because of the different agencies across the world working for the environment. Okay, working for bringing awareness among the people. सो राइटर क्या कहता है कि थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ, है ना, कि बहुत बहुत धन्यवाद किसके एफर्ट्स का? नंबर ऑफ एजेंसीज, बहुत सारी जो एजेंसी जो काम कर रही हैं अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में, और जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो उनका बहुत बहुत, ऐसी एजेंसीज का बहुत बहुत धन्यवाद.
अ न्यू अवेयरनेस हैज डॉन अपॉन, उनके एफर्ट्स की वजह से एक नई अवेयरनेस आ गई है ना. डॉन अपॉन मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू कम इन टू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आना मतलब. तो इन जो डिफरेंट एजेंसीज हैं इनके एफर्ट्स की वजह से एक नई अवेयरनेस मतलब लोगों की समझ में आ गई है. द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, किसकी समझ में आ गई है? मोस्ट जो डेंजरस एनिमल यानी कि आदमी, उसकी समझ में ये चीज आ गई है. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज across the country, across the countries, all the countries across the world, you can say, a new awareness has come in the mind of the people, in the mind of the most dangerous animal, that is man. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. तो वो नई अंडरस्टैंडिंग क्या है? It is very important. Okay, so what is the new understanding? That man has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. इसका मतलब क्या है? It is very important. Means earlier man used to have a dominating attitude towards the natural resources of the earth, towards the earth, but now he believes in partnership. He has started thinking that a number of other species also share earth with him. So there has come a shift in his understanding. ओके, उसके अंडरस्टैंडिंग में एक शिफ्ट आया है. मीन्स ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ डोमिनेशन टू दैट ऑफ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप के सिस्टम की तरफ उसने शिफ्ट कर लिया है कि वो पार्टनरशिप रखता है, वो समझता है कि इस अर्थ को दूसरी स्पीशीज भी शेयर कर रही है उसके साथ. सो ही हैज नॉट द सोल राइट ऑन द अर्थ. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. अब साइंटिस्ट ने कैटलॉग तैयार किया है. साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड कैटलॉग, मींस यू कैन से लिस्ट, एक लिस्ट प्रिपेयर की है साइंटिस्ट ने अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज की. लिविंग स्पीशीज कितनी है? 1.4 मिलियन. 1 मिलियन में 10 लाख के राउंड होता है ना, 10 लाख होता है. तो इस तरीके से मतलब ये 14 लाख क्या वो हो गया. ठीक है, तो 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज को रिकॉर्ड किया है साइंटिस्ट ने, विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ. ओके, विच शेयर द अर्थ अलोंग विद मैन. तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड तैयार किया है कि 1.4 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि मानव के साथ धरती को शेयर करती हैं. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज. सो एंड how many species are there which are still uncatalogued, which are still unrecorded? Regarding such species, the estimates of the scientists vary. कि अनकैटलॉग्ड स्पीशीज कितनी है, अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज कितनी है, तो इससे संबंधित जो डेटा है वो वेरी करता है. ठीक है, वो इससे संबंधित जो डेटा है, एस्टिमेट्स है, वो अलग अलग हैं हर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग. बायोलॉजिस्ट रिकॉन that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये रेकन करते हैं. रेकन मीन्स यू नो गैस करना, एस्टिमेट करना. तो बायोलॉजिस्ट जो है ये गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि 3 से लेकर के और 100 तक, 3 to 100, ठीक है, मिलियन, 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज हैं जो कि अभी भी लैंग्विश कर रही हैं. लैंग्विश का मतलब कमजोर पड़ना, वीकन. ठीक है, कमजोर पड़ना. ओके, तो 3 to 100 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि अभी कमजोर पड़ रही हैं, जो कि मतलब मर रही हैं, मरने की कगार पे हैं. अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस. इग्नोमिनियस का मतलब क्या होता है?
एक तरह से मतलब अंधेरे में, इग्नोमिनियस डार्कनेस, ठीक है, कि वो अंधेरे में जी रही हैं, इसका मतलब वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि उनको रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, उनको भी मतलब लिस्ट में रखा जाए, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज़ अभी बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ को तो भी कंसीडर ही नहीं किया गया है इसमें। One of early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. अब क्या बता रहा है राइटर, क्या लिख रहा है कि वन ऑफ अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, की जो बहुत पहले कमीशंस बने थे इंटरनेशनल लेवल पर, उनमें से एक कमीशन जो कि विच डेल्ट इंट्रेलिया, जो कि डील करता था और चीज़ों के साथ। इंट्रेलिया मीन्स अदर अदर अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। भैया आलिया आलिया भट्ट नहीं है कभी, है ना, आप लोग जो है आपको ध्यान उधर जाए, तो इंट्रेलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, ओके। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment, जो बहुत पहले इंटरनेशनल कमीशंस बने थे उनमें से एक कमीशन जो और चीज़ों के साथ डील करता था, किसके साथ, इकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ, एंड एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ जो डील करता था वो तो ब्रांड कमीशन, वो ये ब्रांड कमीशन था, ठीक है। ब्रांड कमीशन वाज वन ऑफ अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, ओके, एंड इट डेल्ट विद the question of ecology and environment along with some other things, along with some other topics, other subjects, ठीक है। So it had a distinguished member, okay, it had a distinguished member, इसका एक distinguished members था, मतलब Indian was one of its members, ठीक है। इसके मेंबर्स जो थे उनमें से एक जो था वो एक इंडियन था, मिस्टर L.K. झा, किसका, ब्रांड कमीशन का, ठीक है। इसके जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर जो था वो इंडियन था। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, तो जो इसकी रिपोर्ट आई, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, are we to leave our successors as a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? So it means this brand commission presented its report, and in its report it raised a question, very important question, just sensing the very serious impact of deforestation and डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाया क्या कि हम अपनी सक्सेसर्स के लिए एक स्कॉटेड प्लेनेट छोड़ के जाएंगे, स्कॉटेड मीन्स बर्न्ड, झुलसा हुआ, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसके ऊपर डेजर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप, जिसकी लैंडस्केप बड़ी कमज़ोर हो गई है, मीन्स ग्रीनरी कम हो गई है, ठीक है ना। लैंडस्केप एक तरह से ग्रीनरी, जो ब्यूटीफुल सीन्स है नेचर के, तो लैंडस्केप्स हो, तो वो चीज़ें कमज़ोर पड़ गई हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जिसका एनवायरनमेंट क्या हो गया है, डिजीज हो गया है, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त हो गया है ऐसा एनवायरनमेंट। तो इस ब्रांड कमीशन ने मतलब सर्वे किया, इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और इसने पाया कि भाई अर्थ की तो कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी है, और तो इन चीज़ों को देख के लगता है कि क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन सक्सेसर्स के लिए एक झुलसा हुआ प्लेनेट छोड़ के जाएंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी लैंडस्केप जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, और जिसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता जा रहा है, मतलब अस्वस्थ होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है, एलिंग, ठीक है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. Mr. Lester R. Brown has written a very considerable book, has written a very important book, okay, The Global Economic Prospect. And in this book, he points out that the Earth has four important biological systems, कि अर्थ के चार प्रिंसिपल जो है मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ओके, विच इंक्लूड
fisheries, forest, grasslands and croplands. These are four main biological systems of the earth, ठीक है, according to Lester R. Brown, and they form the foundation of the global economic system. And these four systems form, और ये जो है क्या बनाते हैं, these four systems form the base, the backbone of global economic system. ये बेडरॉक हम कह सकते हैं, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेडरॉक, ठीक है। ये चारों सिस्टम मिल करके और जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बेडरॉक को तैयार करते हैं, उसकी नींव को तैयार करते हैं, ठीक है। हमारी जो है नींव, जो इकोनॉमिक सिस्टम की नींव है वो कौन है, ये चारों सिस्टम्स जो हमने पढ़े, फिशरीज, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड एंड जो है forests. Okay. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. So we already know that we get our food from all these four systems, है ना. So apart from that, apart from supplying our food, these four systems provide us raw materials for our industry, raw materials required for our industry. Okay, and you know we get almost everything from all these four systems excluding minerals and petroleum derived synthetics. कि सिर्फ मिनरल्स को, जो भाई ये तो जमीन से निकाले जाते हैं जैसे मिनरल्स वगैरह, तो मिनरल्स वगैरह और पेट्रोलियम जो ड्राइव्ड चीज़ें हैं, सिंथेटिक्स हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब चीज़ें हमें रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्री के लिए वो कहाँ से मिलता है, ये जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं अर्थ के, उन्हीं से हमें मिलता है, ठीक है। खाना तो मिलता ही है हमें इनसे, साथ साथ हमें रॉ मटेरियल भी हमारी इंडस्ट्री के लिए वहीं से प्रोवाइड होता है. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. In large areas of the world, दुनिया के large areas, मतलब ज़्यादातर जगह, दुनिया में ज़्यादातर जगह क्या हो रहा है, human claims on these systems are reaching, कि आदमियों का जो claim है, claim means दावा, ठीक है, इन सिस्टम्स के ऊपर दावा आदमी का इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना कि अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है, ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, in most of the areas of the world, human beings make excessive claims on these four systems, and their claims have reached to an unsustainable level. ठीक है, बहुत मतलब ही ज़्यादा लेवल तक पहुंच गया उनका क्लेम, डोमिनेशन मतलब, ठीक है. इन ऑलमोस्ट all the areas, human beings have extreme claims on these four systems, and they dominate all the four systems, all these four systems, biological systems, and a point where their productivity is being impaired. और एक ऐसी अवस्था तक पहुंच गया है कि जहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, बाधित हो गई है, ठीक है, कि अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई है, बाधित हो गई है. When this happens, जब ऐसा होता है, क्या होता है, जब मतलब लोगों का क्लेम जब बढ़ता है और वो जब ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स हो जाती हैं, फिशेस भी ख़त्म होंगी, ठीक है ना, जो फिशेस के स्टोर हाउस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है. फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट वैनिश, फॉरेस्ट भी गायब हो जाते हैं. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, एंड ग्रासलैंड्स आर चेंज्ड इनटू इनफर्टाइल लैंड, और ग्रासलैंड किस में बदल जाती है, इनफर्टाइल लैंड में बदल जाती है, ठीक है ना. एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड्स है वो भी खत्म हो जाती है, डिटीरियोरेट.
डिक्लाइन हो जाती है. डिटीरियोरेट मीन्स डिक्लाइन. क्रॉपलैंड्स भी डिक्लाइन हो जाती हैं. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In protein conscious world, everybody is crazy about consuming more and more protein, and that's why everybody is consuming more and more fishes. ठीक है. ओवर फिशिंग एक कॉमन सब चीज बन गई है. ओवर फिशिंग हैज बिकम कॉमन among the people because everybody is conscious about his health. Everybody is conscious of having more and more protein, है ना. Everyone is conscious about consuming more and more food rich in protein. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. और जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें जो लोकल फॉरेस्ट हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डेसिमेट कर दिया जाता है. डेसिमेट मीन्स टू कट कलेक्टिवली. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर कट कलेक्टिवली. ओके. in order to procure fire. Why they are cut collectively? To procure means obtain, प्राप्त करना. क्या प्राप्त करने के लिए? फायरवुड फॉर कुकिंग के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए. ठीक है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग कट कलेक्टिवली टू गेट फ्यूल फॉर कुकिंग. इन सम प्लेसेस firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. And in some places the situation is even worse. How it is worse? Ki firewood has become very expensive. Firewood means fuel has become very much expensive, and it seems that it has gone to such an extent that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. कि हालात क्या हो गए हैं, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है ये जो फ्यूल है कि ऐसा है कि जो पोट में पकता है, पोट क्या होता है? बर्तन. ठीक है. पोट में जो खाना पक रहा होता है ना, वो बल्कि सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू फ्यूल. कि फ्यूल महंगा आता है. व्हाट गोज अंडर द पॉट, देखिए जो पोट के अंदर है, व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर, उसकी कीमत ज्यादा है. व्हाट गोज अंडर द पोट यानी कि पोट के नीचे क्या होता है? ईंधन. तो ईंधन की कीमत ज्यादा है देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो इसके अंदर पक रहा होता है, लाइक दाल, चावल, अनाज, कुछ भी मतलब. ठीक है. जो पोट में पक रहा होता है उससे महंगा मिलता है जो पोट के नीचे होता है यानी कि ईंधन. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life faced extinction as a result of its destruction. So, जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वन, ये डॉक्टर मायर्स के शब्दों में है. एक्चुअली डॉक्टर मायर्स बोल रहे हैं कि the tropical forest is the powerhouse of evolution. मीन्स वो इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन क्या होता है? The process by which living organisms develop. ठीक है. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेवलप करते हैं यानी एक तरह से डेवलपमेंट. तो ये डेवलपमेंट का पावर हाउस है कौन? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन. बहुत सी, अब जब फॉरेस्ट को डेसिमेट किया जा रहा है तो बहुत सारी स्पीशीज हैं लाइफ में, वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, मतलब वो लुप्त हो रही हैं. ठीक है. इनके डिस्ट्रक्शन की वजह से. तो डॉक्टर मायर्स सेज दैट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, बट नाउ forests are being decimated, so several rare species of life are facing extinction or have gone extinct. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow.
So it is rightly said that forest precede means come before, कि forest can be seen just before mankind. ओके, प्रीसीड मीन्स पहले आना, तो मैनकाइंड से पहले जो है देखने को मिल सकते हैं फॉरेस्ट, तो डेजर्ट्स फॉलो देयर आफ्टर फॉलो ओनली डेजर्ट्स, उसके बाद तो केवल डेजर्ट्स फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि एज मैनकाइंड एक्सपैंड्स, एज मैनकाइंड इंक्रीजेस देयर demands for different things also increases. So to fulfill their demands for different things, more and more forests are decimated, and it means more use of natural resources, more pollution, more harm to environment and all that. So in this way forest can be seen just before mankind, and thereafter follow only deserts. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. जो वर्ल्ड की एंशियंट पैट्रिमोनी है, पैट्रिमोनी मीन्स हेरिटेज, दुनिया की जो प्राचीन हेरिटेज है, मतलब पैट्रिमोनी है, किसकी पैट्रिमोनी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की पैट्रिमोनी इज नाउ इरोडिंग मीन्स डिक्रीजिंग, खत्म होना, कम होना। ठीक है, दुनिया की प्राचीन जो विरासत है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, वो खत्म हो रही है, वो कम हो रही है। किस रेट पर कम हो रही है? एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल में, यानी कि प्रत्येक साल में 40 से 50 मिलियन एकर्स, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो विरासत है वो खत्म हो रही है। पर ईयर का डेटा बताया है राइटर ने, नैनीपाल की वाला। And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. And in this way, the earth is deprived of the natural fertilizer, that is dung. ठीक है, और अर्थ को डंग से, डंग क्या होता है? द वेस्ट ऑफ एन एनिमल मीन्स लाइक काउ और बफेलो, है ना, तो इस तरीके से डंग होता है, गोबर जिसको हम बोलते हैं। तो इसके यूज से वंचित रह जाती है धरती, यानी कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है, और अब डंग का यूज कर लिया जाता है किसमें? ईंधन के रूप में। तो फिर धरती एक नेचुरल फर्टिलाइजर से क्या रह जाती है? वंचित रह जाती है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। ओके, The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो ये कहता है कि 5-fold इंक्रीज, 5 गुना ज्यादा की जरूरत है। किस चीज की? इन द रेट ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटिंग, फॉरेस्ट जो प्लांटिंग हो रहा है उसमें 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत है। जितने पेड़ उगाए जा रहे हैं उससे कहीं 5 गुना ज्यादा पेड़ ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। टू कॉप विद, ताकि कॉप विद किया जा सके, यानी मैनेज किया जा सके द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, 2000 में, है ना, पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है ये, तो 2000 में जितनी फ्यूल की डिमांड है उस डिमांड को कोप विद करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें 5 गुना ज्यादा ट्रीज उगाने की जरूरत है। और अगर अब हम आज के हालात देखें तो ये 5 गुना नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ट्रीज उगाने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स।